Hello all, myself Dr. Diksha Arora. Today we're going to discuss the bones. I welcome you all to my channel ABC by Dr. Diksha Arora, ABC Anatomy by Dr. Diksha Arora. Today we'll study bones. This is a topic of general anatomy. So let's start. What are bones? Okay, what are bones? First we'll discuss what are bones. You know, bones are the connective tissue which is made up of organic and inorganic components. ओके बोन एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि किससे बना हुआ है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना हुआ है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बोन? वी क्लासिफाई बोन्स इनटू मेनी टाइप्स. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बोन और द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द बोन. उस बोन की शेप कैसी है, तो हमने अकॉर्डिंग टू शेप हमने बोन्स को क्लासिफाई किया एज फर्स्ट इज लॉन्ग बोन्स, सेकेंड इज शॉर्ट बोन्स, थर्ड इज फ्लैट बोन्स, फोर्थ इज irregular bones, fifth is pneumatic bones, and sixth is sesamoid bones. On the basis of shape of the bone, this is the first classification of bone. First is long bone, second is short bone, third is flat bones, fourth is irregular bones, fifth one is pneumatic bone, and sixth one is sesamoid bones. This is the classification. This is the classification which is based upon the shape of the bone. Okay, which is based upon the shape of the bone. Now moving towards the next slide, on the basis of development कैसी हुई bone की, ठीक है. तो we classify bone on the basis of development into three types. First is the membranous bone, second is the cartilaginous bone, and third one is the membranocartilaginous bones. On the basis of development, membranous bone, cartilaginous bones, and membranocartilaginous bones. Okay, first is on the basis of shape of the bone, second is on the basis of development. We classify bone into three types. First is membranous bone, second is cartilaginous bone, and third one is membranocartilaginous bone. Now moving toward the next classification on the basis of region. कौन सी region में वो bone present है? On the basis of region, first is bones of axial skeleton and second is bones of appendicular skeleton. Axial skeleton means main axis, which comprises of head, thorax, vertebral column. Okay, appendicular skeleton means your limbs, upper limbs and lower limbs, and with their girdles. Okay, now we have already studied the three classification. First is on the basis of shape, second is on the basis of development, third is on the basis of region. Now moving toward the next slide, the fourth classification is on the basis of structure. Structure के according actually we have two classification according to the macroscopic approach and according to the microscopic approach. Macroscopic approach में क्या है? First is your compact bone and second one is your spongy bone. This is on the basis of structure. Structure के according to classification है, one is macroscopic and second one is microscopic. First is compact bone, second one is your spongy bone. Now according to the microscopic approach के अंदर क्या आएगा? First is fibrous bone, lamellar bone, woven bone, dentin and cementum. Now this is according to the microscopic approach. Macroscopic के अंदर हमने क्या पढ़ा था? Compact and spongy bone. Now according to microscopic approach, fibrous bone, lamellar bone, woven bone, dentin and cementum. These are the four according to microscopic approach, and macroscopic according to macroscopic approach there are two. First is spongy bone and second is your compact bone. Now moving towards the next slide. Now as I discussed in the first slide, it is the 1/3 connective tissue forming the main supporting framework of the body. इसके अंदर क्या present है? Organic components and inorganic components present हैं. जो inorganic हैं वो उसमें calcium salts हैं that make it hard and rigid. What do you mean by osteology? The scientific study of bone is known as osteology. This is an MCQ question कि जो inorganic calcium salts present है हमारी bone के अंदर that make it hard and rigid. Okay, that make it hard and rigid. Now comes the functions of the bone. Functions of the bone, first is support, protection and movement. Support, protection and movement. First, bones give shape to the body. It supports the body weight and it protects the sensitive parts of the body. as जो हमारे ribs हैं उसके अंदर rib cage है, उसके अंदर हमारे क्या है, आप हमारे vital organs जैसे lungs, heart वो present हैं. तो ribs prevent the जो भी trauma हुआ, ribs prevent the injury to the underlying structures.
ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन है, ये आपको पता है कि ना, द रेड बोन मैरो फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सर्टेन बोन्स इज द साइट ऑफ रेड ब्लड cell production. Okay, first it gives shape to the body, second it supports the body weight, third it protects the sensitive parts of the body like lung, heart, etc. Blood cell formation, the red bone marrow present in the connective tissue of certain bones is the site of red blood cell प्रोडक्शन. ओके, नाउ इनऑर्गेनिक सॉल्ट स्टोरेज, अभी हमने बात करी, जो कैल्शियम प्रेजेंट है एज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, उसमें क्या, इट फंक्शंस एज अ स्टोरेज डिपो फॉर many of the body. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, जो कि क्या है, दे एक्ट एज अ स्टोरेज डिपो इन आवर बॉडी. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ, सबसे पहले हमने पढ़ी थी ना टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप. इट इज क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन, न्यूमैटिक बोन एंड सिस्मोइड बोन. नाउ व्हाट इज अ फ्लैट बोन? फ्लैट बोन का देखो हमने एग्जांपल हमने पढ़ा था, इसके नाम से पता चल रहा है. सबसे पहले लॉन्ग बोन्स पढ़ेंगे. लॉन्ग बोन से आपको पता चल रहा है कि लॉन्ग बोन्स है, इनके एग्जाम्पल है कौन कौन से, एक तो हमारा है फीमर, एक है हमारा ह्यूमरस. ठीक है, फर्स्ट इज क्लियर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज शॉर्ट बोन्स. शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल, दीज आर द शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल है योर कार्पल्स विच आर प्रेजेंट इन योर हैंड एज वेल एज टार्सल्स विच आर प्रेजेंट इन योर फुट. ओके, जो हमारा लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल था, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल इज योर फीमर. ओके, नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था कि अब फ्लैट बोन्स आ गए. फ्लैट बोन्स का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, एफ मीन्स फ्लैट एंड एफ मीन्स frontal. This is your frontal bone. F means flat and F means frontal bone. Now comes the irregular bone. Irregular bone का example है, I means irregular, I means intervertebral disc. Okay, this is a mnemonic for learning. Pneumatic bones. Pneumatic bones का example है maxillary sinuses. Maxillary sinuses. And next is your sesamoid bone. Sesamoid bone is present as पेटला इन आवर बॉडी. और भी हैं, ये होती क्या क्या है, विल डिस्कस इस लेटर. अभी के लिए एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग बोन आर ह्यूमरस एंड फीमर. शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल्स आर मेटाकार्पल्स, योर कार्पल्स एंड टार्सल्स. फ्लैट बोन्स का एग्जाम्पल है फ्रंटल बोन. इरेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. न्यूमैटिक बोन का एग्जाम्पल है मैक्सिलरी साइनस. सिसमॉइड बोन का जो एग्जाम्पल है दैट इज योर पेटला. ओके, नाउ दिस इज अ बोन. ये एक बोन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, जो दो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है विद टू एक्सपेंडेड जो एंड्स हैं, टू एक्सपेंडेड एंड्स जो हैं, जिनको हमने क्या बोल दिया, एपिफिसिस बोल दिया. दीज आर द टू एक्सपेंडेड एंड्स. दिस इज, ये कोई भी लॉन्ग बोन है, जैसे फॉर एग्जांपल फीमर पढ़ा हमने, ह्यूमरस पढ़ा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन. तो जो लॉन्ग बोन है उसमें क्या है, देयर आर टू एक्सपेंडेड एंड्स, वन ये वाला और ये वाला, ए वन ऑन ईच साइड. ठीक है, दीज आर द एपिफिसिस. ठीक है, एपिफिसिस है. लॉन्ग बोन्स, दीज बोन्स टिपिकली हैव अ इलोंगेटेड शाफ्ट. नाउ दिस इज अ शाफ्ट. दिस जो पूरा जो मैंने एरो लगाया, दिस इज अ शाफ्ट. द शाफ्ट इज नोन एज डायफिसिस एंड द एंड्स आर कॉल्ड एज एपिफिसिस विच आर एक्सपेंडेड. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस एंड फीमर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ व्हाट आर शॉर्ट बोन्स? द बोन्स नाम से पता चल रहा है, दीज बोन्स आर शॉर्ट इन पोस्चर, शॉर्ट इन स्ट्रेचर एंड कैन बी ऑफ एनी शेप. शेप कोई भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल कार्पल एंड टार्सल बोन, दीज आर योर कार्पल्स जो कलर्ड है. ठीक है, और ये जो है, ये फुट के केस में, दीज आर योर टार्सल. The name are written कि रेड वाली कौन सी है, ब्लू वाली कौन सी है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, पेसिफॉर्म, ट्राइकेट्रम, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हेमेट. ठीक है, ऐसी टार्सल्स के नाम है कैल्केनियस, टेलस, नेविक्यूलर, क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म्स. ठीक है, दीज आर योर टार्सल्स. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. फ्लैट बोन्स. फ्लैट बोन्स का एग्जांपल हमने फ्रंटल पढ़ा था, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपका स्कैपुला है विच इज योर शोल्डर ब्लेड. दिस डायग्राम में शोइंग स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड है जो. ठीक है, रिब्स हैं, ये रिब्स हमने पढ़ी थी. ठीक है, और जो हमारा स्टर्नम है जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैट बोन्स. ओके, नाउ इरेगुलर बोन्स. आई मीन्स इरेगुलर, आई मीन्स आपको पढ़ा था इंटरवर्टिब्रल डिस्क. दीज बोन्स आर कंप्लीटली इरेगुलर इन शेप. इसकी कोई शेप नहीं है, देखो इसकी कोई शेप नहीं है, ना तो ये राउंड है, ठीक है, ना तो ये फ्लैट है, ना तो ये लॉन्ग है, ना तो ये शॉर्ट है. दीज हैव इरेगुलर शेप. ठीक है, दीज बोन्स आर कंप्लीटली इरेगुलर इन शेप. एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड हिप बोन. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिप बोन, इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज योर हिप बोन विच इज नोन एज pelvic bone. This is also an example of your irregular
bone. Now moving toward the next slide, what are pneumatic bones? Pneumatic bones can also be categorized under the irregular bones. ये भी irregular bones की तरह है. Actually these sinuses, maxillary sinuses, ethmoid sinuses, sphenoid sinuses, हमने ये जो sinuses पढ़े थे इनकी actually कोई shape नहीं होते. They can be categorized under the इरेगुलर बोन्स. लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस क्या है इरेगुलर बोन से? द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर स्पेसेस इन द बोन्स विच मेक देम लाइट इन वेट एंड दस इट फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द स्कल. फॉर एग्जाम्पल स्फेनॉइड साइनस, इथमॉइड साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस. मैक्सिलरी साइनस आर द सबसे बड़े साइनस, आर द ग्रेटर साइनसेस प्रेजेंट ऑन फेस. ओके ये नीचे आपको नजर आ रहे हैं जो डायग्राम बना हुआ है. ए जो है वो फ्रंटल साइनसेस हैं, ठीक है. जो फ्रंटल साइनसेस है वो आपको इस कलर से लेबल कर रखा है, ठीक है. इथमॉइड साइनसेस जो है वो पिंक कलर से लेबल कर रखा है. स्फेनॉइड साइनसेस रेड कलर से है. मैक्सिलरी साइनस जो है ये 4 नंबर जो आपको नजर आ रहा है, दीज आर द लार्जेस्ट साइनसेस एंड ऑल द साइनसेस आर पेयर्ड. ये पेयर्ड है, ठीक है. नाउ कम सिस्मोइड बोन्स. एक्चुअली these are in the form of nodules which are embedded in the tendons and joint capsules. ठीक है, क्या है टेंडन्स एंड जॉइंट कैप्सूल्स के अंदर ये कुछ नोड्यूल्स हैं. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स एम्बेडेड इन द टेंडन्स एंड द जॉइंट कैप्सूल. एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, जो हमने पढ़ा था नी कैप जो है हमारा, जो नी कैप हमने पढ़ा था, ठीक है, दैट इज नोन एज बेटेला और पिसिफॉर्म एंड फेबुला. दीज आर द सिस्मोइड बोन. एक्चुअली these are the bones which are formed inside the nodules which are embedded in the tendons of the joint capsule. Okay, now on the basis of development, as we have studied earlier, we have classified bones into 3 types on the basis of development. First is membranous bone, second is cartilaginous bone and third one is membranocartilaginous bones. इनकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई? फर्स्ट इज योर membranous bone. Membranous bones, these bones ossify in the membrane and from the mesenchymal condensation. Examples bones of the vault of the skull and facial bones. जितनी भी bones है skull की और जितनी भी bones है हमारे facial skeleton की, actually these bones ossify in the membrane. तो इसलिए इसका नाम क्या है? membranous bones. ठीक है. Now comes cartilaginous bone. Cartilaginous जो bone है, these जो है ये bones है, they ossify in the cartilage. ठीक है. For example thoracic cage. Your thoracic cage is an example of cartilaginous बोन्स. थर्ड वाला कौन सा पढ़ा था हमने? मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस. ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो बोन्स है वो दोनों के अंदर दे ऑसिफाई पार्शली इन द मेम्ब्रेन एंड दे पार्शली इन द कार्टिलेज. आधी मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफाई हुई और आधी किसके अंदर हुई? कार्टिलेज के अंदर हुई. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस जो बोन है दैट इज योर मैंडिबल. एंड योर जो मैंडिबल है उसके बाद टेम्पोरो मेम्ब्रेलो cartilaginous bone. This green one is your temporal and membranocartilaginous bone. Most common example of the membranocartilaginous bone is mandible and your clavicle. जो second diagram है इसमें आपको red color की एक bone नजर आ रही है. This is your collarbone. This collarbone is called as your clavicle. You have to remember the examples of all the bones कि वो कौन सी membranocartilaginous है, कौन सी membranous है, कौन सी cartilaginous है, ठीक है, कौन सी long है, short है, irregular है, sesamoid है, pneumatic है. Now most common example of membranocartilaginous bones are clavicle and the mandible and third one is temporal. Okay, at least you have to remember the two जो उसके जो examples हैं of each bone. On the basis of types, on the basis of region के according हमने 2 types से classify करा था. First is your axial skeleton and second one is your appendicular skeleton. अब क्या है जो बोन्स है एक्सियल स्केलेटन की, जो आपको ब्लू कलर से आपको लेबल कर रखा है इस डायग्राम के अंदर. एक्चुअली जो एक्सियल स्केलेटन है इट कंप्राइजेस ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल. ठीक है, ये थोरैसिक केज एंड पीछे की तरफ इज योर वर्टिबल कॉलम. ठीक है, जो एक्सियल स्केलेटन है इट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. इट कंप्राइजेस ऑफ बोन्स ऑफ द स्कल, थोरैसिक केज एंड द वर्टिबल कॉलम, जो इसके अंदर डायग्राम के अंदर ब्लू कलर से आपको लेबल करके दिखा रखा है. नाउ बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक्चुअली क्या होते हैं, जो लिम्स हैं और जो गर्डल्स हैं, ये रेड कलर से जो आपको दिखा रखा है इस डायग्राम के अंदर, एक्चुअली जो लिम्स हैं, ठीक है, ये अपर लिम्ब है आपके, ठीक है, बोथ, एंड ये उसके गर्डल्स हैं. ठीक है, गर्डल्स जहाँ से ये अटैच है, शोल्डर गर्डल. एंड ऐसे ही जो हमारा जो लेग है ये पूरी की पूरी, ठीक है, और इसके साथ जो इसकी गर्डल है दैट इज योर पेल्विक गर्डल. ठीक है, दीज आर द बोन्स विच फॉर्म्स द बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर,
On the basis of structure, actually we have divided into two parts. First is your macroscopic approach and second is your microscopic approach. Macroscopic approach के अंदर हमने two study करी थी. First is your compact bone and second one is your spongy bone. जो compact bone है, that is dense in texture but it is extremely porous. Example in the cortex of long bones. Compact bone is dense in texture but it is extremely porous. Dense है texture में लेकिन porous भी है. For example in the cortex of the long bones के अंदर जो है हमारी present है, कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारी प्रेजेंट है हमारी ये वाली मैक्रोस्कोपिक जो अप्रोच है उसका फर्स्ट वाला, दैट इज योर कॉम्पैक्ट बोन. नाउ कैंसलस और स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी कह लो या कैंसलस कह लो, इट इज वन ऑन द मेन सेम थिंग. ठीक है, द पार्ट ऑफ द बोन वेयर देयर इज मोर एम्प्टी स्पेसेस एंड लेस बोन टिश्यू. एम्प्टी स्पेसेस तो ज्यादा है लेकिन बोन टिश्यू क्या है, कम है, तभी हमने इसको स्पॉन्जी बोला है. स्पॉन्ज का मतलब यही होता है जिसमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हो और टिश्यू कम हो. ठीक है, तो इसका जो है एग्जाम्पल क्या है, द इनर पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन. जो लॉन्ग बोन का अंदर वाला पार्ट होता है ना, दैट इज स्पॉन्जी बोन. नाउ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने आपको पढ़ा था, उसमें वोवन बोन है, फाइब्रस बोन है, सीमेंटम है, डेंटिन है. एक्चुअली देयर इज अ सेपरेट लेक्चर इन हिस्टोलॉजी फॉर देम. ठीक है, फर्स्ट विल डिस्कस ओनली सीमेंटम एंड डेंटिन हेयर. एक्चुअली सीमेंटम इज अ स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस विच कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ. रूट ऑफ द टूथ जो है उसको कवर करती हुई, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस ऑफ द टूथ, रूट ऑफ द टूथ. इट हार्डन्स टू एक्ट एज अ एडेसिव ग्लू. अब डेंटिन क्या है, ये सीमेंटम आपको नजर आ रहा है, दिस इज सीमेंटम. इट इज अ स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंस विच कवर्स द रूट ऑफ द टीथ एंड द डेंटिन इज वन ऑफ द हार्ड टिश्यू ऑफ द टीथ विच कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द बल्क. मोस्ट ऑफ द बल्क इज of the tooth, it is made up of the dentin. Actually this is a separate chapter in your dental anatomy if you are dental student. ठीक है, example is it occurs in teeth. ओके, नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन. पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन हमने डिस्कस करे कि दो एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं. ठीक है, जिसको हम एपिफिसिस बोलते हैं. जो लॉन्ग बोन है इट हैज अ लॉन्ग शाफ्ट विच इज नोन एज द जो हमारा शाफ्ट है दैट इज नोन एज योर, बीच में डायफिसिस बोलते हैं उनको. ठीक है, द पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, पार्ट्स ऑफ द लॉन्ग बोन क्या है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, विथ दिस वी ऑल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द बोन. फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.